پہلا پارہ سورہ فاتحہ آیات نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اردو میں ترجمہ: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اے اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے، اور یہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ ہے۔ ایاکا صرف تیری، یہ ایک ایک لفظ کا مطلب۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و مانے اور، ایاکا اور صرف تجھ سے ہی یا تیری، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب ہے اس کی تفسیر۔ توحید کا عزم، توحید یعنی اللہ پہ بھروسہ رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1 کے مطابق تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد تو وہ عہد کرتا ہے کہ اس کی نماز، اس کی قربانی اور اس کی بندگی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ یہ دیکھیں انسان جیسے آج کل توبہ استغفر اللہ، اتنی درگاہ بنے ہوئے، اتنے پیر ہیں کہ قرآن اور نماز کا ان پیروں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اور جو مرید ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ بس وہ ادھر چلے جاتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کو سب کو پتہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرما رہا ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے، جو عملوں کا دار و مدار، یعنی جو بھی وہ عمل کرتا ہے اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے وہ کہتا رہے میں کر یہ رہا ہوں، میں جیسے کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، کسی کے نام کی خیرات پکا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بنائی ہے۔ بھی اللہ تعالیٰ تو نیت بھی جانتا ہے، اور جو تم کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو تو نہیں دے سکتے۔ اب جیسے انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کی جگہ پہ میں آپ کو بتاؤں توبہ استغفر اللہ، نماز کے بھی حصے کیے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ نماز بھی اللہ تعالیٰ کی مکمل نہیں پڑھتے۔ میں نے خود گاؤں میں کیا بہت ساری ایسی فیملیاں، بلکہ اپنی فیملیاں، ان سے پوچھا مجھے نماز کا تو بتائیں نیت کیسے کرتے ہیں، تو انہوں نے فرض صرف اللہ تعالیٰ کے کہا ہم نیت کرتے ہیں نماز کی، عبادت اللہ تعالیٰ دی، 4 نماز جو فرض تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، 4 سنت جو انہوں نے کہے تو بس تک انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور 2 نفل پڑھے تو بی بی عائشہ کے۔ مجھے پہلے یہ بتا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو وہ اپنی عبادت آپ کرتے تھے؟ سنت کا یہ مطلب تو نہیں ہے، سنت کا طریقہ ہے کہ وہ انہوں نے بتائی ہیں، انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ نہیں، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ استغفر اللہ سنت پڑھنا شروع کر دیتے۔ اب جب ایسی نماز پڑھیں گے، ایسے کام کریں تو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ان کی نیت کیا تھی، ان کا رد اور جو کر رہے تھے دار و مدار ان کا وہ کیا تھا۔ اب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، کیا وہ اپنی عبادت آپ کرتی تھی؟ وہ اپنے نام کی نفل پڑھتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہا ہے اس میں کہ میری ہی عبادت کرو، ایاکا میری نعبدو عبادت کرو اور مجھ سے ہی مدد چاہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کیوں نہیں فرمایا؟ یہ دیکھیں اوپر اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیات دی ہے اور ادھر کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز میں تو پڑھتی تھی نا سورہ فاتحہ، تو پھر توبہ استغفر انہوں نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، انہوں نے سنتے اپنی پڑھی اور نفلیں بھی اپنی پڑھی،
और किसी बंदे की नमाज पढ़ी जा सकती है? आप मुझे पहले ये बताएं। तो ऐसे इंसान दीन से दूर हैं, वो कुरान पाक को नहीं पढ़ते, बस सुनी सुने हमारे बड़ों ने ये पढ़ा था, बड़ों ने ये किया कहा था, तो हम क्यों ना भी। आपके बड़े तो बहुत कुछ अच्छा भी कर गए, बुरा भी कर गए। जो अच्छी चीजें हैं वो उनकी सीखें, वो अल्लाह ताला के सुपुर्द हो चुके हैं, अल्लाह ताला ने उनको सवाब गुना देना है। तो आप तो वैसे ना करें। अब बड़ों ने मैट्रिक किया हुआ था, तो फिर आप बड़ों के बराबर चलते। आपने एमए क्यों किया? बड़ों ने टीवी देखे थे, वो भी मुश्किलों से, नेट नहीं चलाते, फिर आप क्यों चलाते? फिर सारी कॉपी बड़ों की करनी है तो वैसे करें। नहीं जी, ये जदीद दौर है, जदीद दौर है तो आपने जदीद चीजें सीखी हैं तो कुरान पाक को सीख लें। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नमाज इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की होती है। किसी का नाम ना कहा करें कि ये सुनते हैं उनके नाम की है नफिल। नमाज के हिस्से ना किया करें। अल्लाह ताला शिर्क करने वाले को कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने कहा हर इंसान को माफ करूंगा, शिर्क करने वालों को नहीं। और ये साफ शिर्क नमाज में कर देते हैं। उधर अल्लाह ताला को कह रहे हैं हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं, इधर नमाज के हिस्से कर रहे हैं। ये कौन सा दीन है? और कौन से हम कहते हैं हम मुसलमान हैं? फिर कहते हैं फलां फिरका, फलां फिरकों को छोड़ें, गोली मारें। आप ये जो है इस पे तो अमल करें। अब इसके नमाज और इसकी कुर्बानी और इसकी बंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए है। अब देखें, वो जो नमाज पढ़ता है, वो जो कुर्बानी करता है, कुर्बानी में ये नहीं है कि बकरा जब ज़िबा किया जाता है। कुर्बानी बहुत सारी चीजों के लिए होती है जो अल्लाह ताला के नाम के लिए की जाता है। जैसे गुनाह को छोड़ा जाए, शिर्क जो को छोड़ा जाए, सूद को छोड़ा जाए, ऐसे बुरे लोगों को छोड़ा जाए जो आपको बुराई की तरफ लेके जाते हैं। अपने नफ्स पे कंट्रोल किया जाए, अपनी ज़रूरियात पे कंट्रोल किया जाए और अपनी जायज़ ख्वाहिशात पूरी की जाए, नाजायज़ को छोड़ा जाए। अल्लाह ताला ने फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का दोस्त कहा है, तो उसको छोड़ा जाए। तो ये भी एक कुर्बानी ही है और अल्लाह ताला के लिए है। जो काम अल्लाह ताला ने कहा है जब हम वो करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम छोड़ देते हैं दिल चाहते हुए भाई। अब देखें, बहुत सी चीजें दिल चाहता है, लेकिन जैसे इंसान के पास पैसे नहीं है तो उसका दिल चाहता है मैं ये ले लूं, ये ले लूं। अब पैसे नहीं है तो वो जाके क्या सूद ले ले, क्या वो बुराई कर ले, क्या वो गुनाह कर ले, अपनी आखिरत खराब कर ले इस दुनिया के लिए? नहीं, जब वो चीजें छोड़ देगा तो वो भी एक कुर्बानी है और वो अल्लाह ताला के लिए। तो जो बंदा नमाज भी अल्लाह ताला के लिए पढ़ता है, इबादत भी सिर्फ उसी की करता है और मदद भी सिर्फ उसी से मानता है और उसी के कहने पे जितनी नाजायज चीजें उनको छोड़ता है, तो वो भी कुर्बानी कहलाती हैं। बुखारी शरीफ की तालीमात का निचोड़ यही है कि इबादत में किसी और का शरीक ना किया जाए। अब देखें, इसी में सही बुखारी क्या कुरान पाक खुद फरमा रहा है कि इबादत में सिवाय अल्लाह के किसी और को शरीक ना ठहराएं और सजदा भी सिर्फ खुदा ताला को करें। अब दरगाहों पे जाते हैं, जाके सजदा करते हैं, तो क्या ये जायज है? जब अल्लाह ताला ने साफ अल हम शरीफ में कहा है मेरी इबादत करो, तो फिर क्यों किसी और की जाके इबादत करते हो? किसी और के दरवाजे पे क्यों जाके झुकते हो? किसी और पे लिए क्यों कुर्बानियां करते हो? वहां जाके क्यों दरगाहों पे देगें चढ़ाते हो? क्यों किसी और के नाम की खैरातें करते हो? क्या अल्लाह ताला भूल गया था ये बताना कि आप मेरे पैगंबर की खैरात करना, उसी के नाम की नमाज? जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इतने प्यारे थे कि सब जितने नबी थे उनके पीछे उन्होंने नमाज पढ़ी। तो अल्लाह ताला फिर ये कैसे भूल गए? उन्होंने क्यों नहीं फरमाया कि आप ऐसे ऐसे करें? उसकी जो रोज़ा मुबारक है, उस पे भी अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि जाके आप सजदा करो। वहाँ जब भी कोई जाके करता है, जितने हाजी हैं उनसे पूछे वो सजदा करें, तो वहाँ पे जो पुलिस वाले करते हैं वो उनको मुशरिक कहते हैं। तो फिर वो वहाँ क्यों ऐसे खड़े? अगर वो उनको नाजायज तरीके पे वहाँ खड़ाया गया है तो क्या सऊदी अरब फिर लोग तो ना जाते? लेकिन वो कहते हैं ना कि ये शिर्क है, आप ऐसे ना करो।
तो खुदारा आप अपनी आखिरत संवारें, नमाजें, अपनी इबादतें, अपनी कुर्बानियाँ, अपना सब कुछ अल्लाह ताला के नाम पे करें, नाजायज़ ख्वाहिशात को छोड़ दें। ये रिश्ते ख़त्म कर देती है, नाजायज़ के पीछे भाग भाग के अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा बढ़ा के अपनी आखिरत ख़राब मत करें। अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने एक रोटी दी है, सुकून से खा के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें। जो चीज़ आपके पास है उस पे शुक्र करें, जो नहीं है उसको दरगुजर करें, उस पे अल्लाह ताला से कुर्बानी समझ के उसको छोड़ दें और अल्लाह से मदद मांगना। अब ये है सही बुखारी हदीस नंबर में ये में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का जिक्र है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह से मदद मांगते थे। इया का नस्ताइन का मतलब है ये है कि हम अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े मामले में, चाहे वो दुनियावी हो या दीनी, सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत और मदद पर भरोसा करते हैं। अब देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पैगंबर थे ना, हम इंसान हैं, जाके फलां से मांगते हैं, फलां से मांगते हैं, फलां से मांगते हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे क्या वो अपने आप से मांगते थे? वो तो रहमतुल आलमीन थे, पूरी दुनिया की रहमत थे। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जब सवाल किया गया था कि ये तो आखिरी नबी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी कि मैं तो आखिरी नबी हूं, मेरी उम्मत क्या करेगी? तो ये कुरान पाक है, जिसको पढ़ पढ़ के उनके पास कोई नबी नहीं होगा, लेकिन वो इसको पढ़ पढ़ पे के अमल करेंगे तो वो मुसलमान है। ये नहीं है कुरान पाक को छोड़ के हम उन जितने आजकल फराडी बैठे हैं, जितने पीर बैठे हैं, जितने जो बैठे हैं, उनके पास चले जाओ, कोई गरीब है अमीर है, उनको दो पैसे, उनके घर देखें, उनकी गाड़ियां देखकर हम गरीबों की मत मारी जाती है, उनके पास जाते हैं। और इधर अल्लाह ताला का नबी खुद अल्लाह ताला से मदद मांग रहा है, और हम किन से मांगते हैं? हम लोगों से मांगते हैं। फिर हम कहते हैं हम अहले सुन्नत जमात के हैं। अहले सुन्नत जमात के हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना क्यों नहीं मानते? जब उनको नबी मानते हो तो जिस रास्ते पे वो चले हैं उस पे क्यों नहीं चलते? फिर उनके कहने पे अमल क्यों नहीं करते? वो अल्लाह से मांगते थे तो आप दूसरों से क्यों मांगते हैं? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए थे अपनी उम्मत को कहना कि आप मुझसे मांगना, तो उन्होंने क्यों नहीं कहा? वो खुद अल्लाह से मांगे तो उन्होंने बताया कि मेरी उम्मत भी ऐसे करे। हम कोई मुसलमान नहीं है फलां फिरका फलां फिरका। अब देखो जो शिया हैं, अहले तशीय हैं, वो कहते हैं हम अहले तशीय हैं, तो उन्होंने हजरत इमाम राजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत हुसैन, उन्होंने अपने बच्चे कुर्बान करवा दिए और उन्होंने किसी की बैत नहीं की, सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं मांगा। और ये उनके जो पुतले बनाते हैं उनसे मांग रहे होते हैं। तो फिर कहते हैं हम जी ये हैं, हम ये, अब वो हैं तो नबी हजरत हम जो अहले सुन्नत है वो नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना माने, जैसे उन्होंने किया है वैसे करें। और जो हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा के हैं, तो वो उनका कहना माने कि उन्होंने अल्लाह से मांगा तो वो भी अल्लाह से मांगे। उन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए, किसी को बैत नहीं किया, किसी को सिजदा नहीं किया, तो फिर ये क्यों करते हैं? और पर्दे की बात आ जाए, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला की नफलें पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या वो बगैर पर्दे के बाहर जाती थी? अब पर्दे की बात की जब कहते हैं ये तो जहालत का दौर था। कुरान पाक में पर्दे का जिक्र है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां बीवियां पर्दा करती थी तो वो जहालत था। तो फिर आप लोग क्यों कहते हैं हम उनकी उम्मत के हैं? जब जहालत है फिर आप जहालत वालों को उम्मत के ना बने। जब वो की उन्नत उम्मत के बनते हैं तो उनके पैरोकार बने, उनकी तरह रहें, उनकी तरह पर्दा करें, उनकी तरह दीन पे चलें। नहीं नंगे जिस्म से फिरते रहेंगे, कहेंगे हम तो ओपन माइंडेड हैं। इसको ओपन माइंडेड कहते हैं? कुरान और सुन्नत पे अमल ना करो, नमाजें लोगों की पढ़ो, सजदो लोगों को करो और मदद लोगों से मांगो, फिर कहो जी हमारे तो हालात खराब हैं, हमें तो सुकून नहीं है। तो तुम लोग कौन सा अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हो?
कभी उसकी किताब को खोल के पढ़ा है? जो उसकी किताब में है वो अमल किए? क्या उससे मदद मांगी है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह जाके लोगों को सजदे करते हो, दरगाहों पे जाके नफली पढ़ते हो, वहां पे जाके उनसे बेटे मांगते हो, उनसे बच्चे मांगते हो, देता अल्लाह है और कहते हो हमें फलाने दिया फलाने दिया। और जब तुम उनसे जाके दूसरों से मांगते हो तो तुम्हारे पैगंबरों ने जिनके तुम पैराकार हो, वो क्यों नहीं किसी और से मांगते? वो सिर्फ अल्लाह से क्यों मांगते थे? तो खुदारा आप मुसलमान बने, जैसे जो भी फिरके से हो उसी अपने फिरके वाले को अपनाएं और उसी की पैरवाकारी करें। जो भी हैं अहल सुन्नत हैं, देवबंद हैं, वहाबी हैं, जो भी हैं, शिर्क को छोड़ें, खुदारा उसी पे अमल करें। और दुआ का मतलब ये भी होता है कि अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े मामले में ये नहीं है कि ये कहे हमें सीधा रास्ता दिखा दे, सिर्फ ये कि ये रास्ता किधर जाता है, नहीं। सीधे रास्ते का मतलब है कि जो रास्ता अल्लाह ने बताया है, बुराई से दरगुजर करो, नेकी के रास्ते पे चलो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो, तौफीक है तो जो अच्छे काम है वो करो, रातों को गुनाह ना करो। रात इबादत के लिए होती है, तहज्जुद के लिए होती है। लोगों के डर से छुप छुप के गुनाह करते हो, लोगों से डरते हो, नहीं, सीधे रास्ते, यही मतलब होता है। और चाहे वो यानी बुनियादी हो या दुनियावी, ये बुनियादी यानी हमारे अपने हो कि हमारे अपने जिस्म को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हमने बुरी ख्वाहिशात को ख़त्म करना है, कैसे अल्लाह के राह पे चलना है। और दुनियावी जैसे दुनिया से कैसे कमाना है, अल्लाह ताला ने जो रास्ता बताया है, हराम रिश्वत खोरी ना लें, रिश्वत लेके अयाशियां करें, हम जी फलां हैं, हम फलाएं नहीं, वो भी गुनाह है, गुनाह करके अयाशियां करें नहीं। दीनी भी और दुनियावी भी दोनों सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगे, उसी की कुदरत और उसी की मदद पे भरोसा रखें। ये नहीं है कि अगर आपको कुछ नहीं मिला तो बुरे रास्ते से कमाना शुरू कर दे, नहीं। अल्लाह ताला की कोई मसलहत होगी तो वो नहीं दे रहा। अल्लाह ताला को पता होता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। शैतान तो बुराई की तरफ लेके जाता रहता है, लेकिन अल्लाह ताला को पता होता है कब मैंने अपने इंसान को क्या देना है। और जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह ताला भी खुश होता है। और उसी से मांगे और उसी से भरोसा रखें। और कुछ देर भी हो जाए तो उस पे आग बगोला ना हो जाए, जी मैंने तो ये पढ़ा, मैंने तो वो किया और अल्लाह ने मुझे नहीं दिया। अल्लाह ने जो दिया है उसका भी शुक्र अदा कर लें। अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिया है तो जो नेमतें हैं, अब तो एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। अब पानी है, आप खरीद सकते हो, मिनरल वाटर खरीदते हो, कितनी छोटी सी बोतल कितनी महंगी होती है। और अल्लाह ताला ने आपको कितना पानी दिया और कितना ज़ाय करते हो उसको, वो भी अल्लाह ताला की नेमत है। और बहुत सारी हवा है, वो आप खरीद सकते हो, धूप है वो खरीद सकते हो। कितनी बिजली बनाती हैं आप, जितनी भी रोशनी कर ले, तो एक एक चीज की हम शुक्र नहीं अदा कर सकते। अब दूसरे बंदगी और दुआ का ताल्लुक, सही बुखारी हदीस नंबर में है कि एक हदीस कदसी है जिसमें अल्लाह फरमाता है, ये आयत इया कहने अबुदू, मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है। देखो, इया का तेरी ना अबुदू इबादत, अल्लाह ताला के सामने जब खड़ा हो के बंदा ये दिल से सिर्फ उसी की इबादत करता है तो अल्लाह ताला कहते हो सिर्फ मैं होता हूँ और मेरा बंदा होता है। और जो किसी को शरीक भी नहीं ठहरे, ये नहीं सुनते हैं किसी और के नाम पढ़े, नफिल किसी और के और खड़े हों अल्लाह ताला के आगे, ये नहीं जब उसके आगे खड़े हों सिर्फ उसी की इबादत करें। और जब आपको तर्जमा आता होगा तो आप सोचें ये जो लफ्ज पढ़ रहा हूँ इसका मतलब क्या है, फिर अल्लाह और अपने आप को उसके दरमियान एक कर लें। और जब सजदा करें तो ये सोचें मैं अल्लाह ताला के पाँव में सजदा कर रहा हूँ, फिर होती है नमाज दिल से। और मेरे बंदे के लिए वो है जो उसने मांगा। जब बंदा दिल से नमाज में खड़ा होता है और फिर कहता है कि ईया का तेरी नअबुदु इबादत करता हूँ, तब अल्लाह ताला कहता है कि वो मुझसे जो मांगता है मैं उसको देता हूँ। जब बंदा सिर्फ अल्लाह की बंदगी का इकरार करता है, ये नहीं है
नमाजें हम अल्लाह की कर रहे हों, मांग हम बच्चे और दूसरों से रहे हों, जो अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो बस तफलो उनके पास क्या जाते हैं, कहते हैं हमारे लिए दुआ करें, हमें फलान दें, तवीज़ दें, हमारी औलाद हो जाए। अल्लाह के बंदे, आपको पता है उनके घर में अपने बच्चे माजूर पड़े हैं, तो बस तगफिरुल्लाह। कितने पीर मैंने देखे, वो अपने घर में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लोग जाके उन्हीं से मांगते हैं। तो सबसे बड़ा शिर्क तो ये है। फिर हम कैसे आलम शरीफ नमाज में पढ़ते हैं? जब हम पढ़ते हैं तो फिर उस पे अमल क्यों नहीं करते? और अरहम शरीफ के बगैर नमाज नहीं हो सकती। तो इकरार अल्लाह ताला से करें, बंदगी भी उसी से उसी की करें, मांगे भी उसी से, और किसी इंसान से भी उम्मीद ना लगाएं। एक दफा आप किसी इंसान से मांगे, ठीक है, ये एक आम है कि इंसान इंसान का जरिया है, सिर्फ ये वक्ती तौर पे एक दफा मांगे, दो दफा, तीन दफा मांगे, तीन से ज्यादा मांगेंगे वो शिर्क में शामिल हो जाएगा। तो अल्लाह इसी की मदद का जिम्मा ले लेता है। जब बंदा सिर्फ अल्लाह की बंदगी का इकरार करता है तो अल्लाह इसकी मदद का जिम्मा ले लेता है। जब हम अपने हर काम अल्लाह के लिए करते हैं, कि कहते हैं अल्लाह ही देगा हमें, हम इबादत भी सच्ची उसी से करते हैं, तौहीद पर अमल करते हैं, हम गैरों के दरवाजों पे नहीं झुकते, हम गैरों को सजदा नहीं करते, गैरों के नाम की खैरातें नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसी की नमाज पढ़ते हैं, सूद नहीं खाते, हराम नहीं खाते। ये एक फिरका आया हुआ है जी, शर्त तय कर लें तो आप सूद ले सकते हैं। कुरान पाक में है, इतना सोना लें तो उतना ही वापस करें, जरा बराबर ज्यादा वापस करेंगे तो वो सूद में आता है। फिर भी ये लोग अपने फायदे के लिए ऐसे फतवे दे देते हैं, कुरान पाक को पढ़ते नहीं है और मौलवियों से फतवे लेने चले जाते हैं। अल्लाह के बंदे, जब तुम्हारे पास किताब है, अल्लाह ने आंखें दी हैं, तालीम दी है, बाकी किताबें पढ़ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ये नहीं पढ़ सकते, इसको नहीं समझ सकते, इंग्लिश समझ सकते हो, हजारों करोड़ों फीसें भर के, और ये फ्री में है, शायद इसलिए इसकी इज्जत नहीं है। और जिसके दिल में कुरान पाक की इज्जत नहीं है, बस उसको उठाया चूमा, ये इज्जत है, उसको पीठ नहीं करनी, ये इज्जत है नहीं। इज्जत ये है जो कुछ इसमें लिखा हुआ है उस पे अमल करो, और उस पे रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे पास कोई नबी नहीं आना, यही किताब है जिस पे हमने अमल करना है। तो जब हम अल्लाह का सारा करेंगे, इबादत उसी की, मदद उसी से, रास्ता सीधा उसी से मांगेंगे, तो फिर अल्लाह ताला उसकी मदद का जिम्मा ले लेता है। और जब अल्लाह ताला किसी की मदद का जिम्मा ले ले तो कौन है इस दुनिया में जो उसको बंद कर सके, जो उसको ठुकरा सके? अल्लाह ताला हमको, हमारी औलाद को इंशाल्लाह तौफीक दे, और हर मुसलमान को कि वो उसी की इबादत करें, उसी से ही मदद मांगे। अब इंग्लिश में।